یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 3 مئی 2026 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: دائمی سزا۔ سنہری متن: یوحنا۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ اے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں، جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، پورب سے، پچھم سے، اتر سے اور دکن سے۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستے پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ کرنتھیوں: اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں، یہ بھی تم سے التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا ہے بے فائدہ نہ رہنے دو، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو، اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو، یہ نجات کا دن ہے۔ فلپیوں: اس لیے اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرمانبرداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کرتے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ خدا ہے۔ سلاطین: اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور ارامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا، وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور الیشا نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا کہ جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا، مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا۔ تب اس کے ملازم اس کے پاس آ کر یوں کہنے لگے، اے ہمارے باپ،
अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का तुझे हुक्म देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा उससे मानना चाहिए। तब उसने उतरकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानद हो गया और वो पाक साफ हो गया। फिर वो अपनी जलौ के सब लोगों के साथ मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, देख, अब मैंने जान लिया कि इसराइल को छोड़ और कहीं रोए जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब कर्म फरमाकर अपने खादम का हदिया कबूल कर। लेकिन उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं लूंगा। और उसने उससे बहुत इसरार किया कि ले, पर उसने इनकार किया। लूका। और वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो, जकई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गोलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उसने कहा, ऐ जकई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर खुशी से उसको अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे, ये तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और जकई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। ज़बूर। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तईद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा जमीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद हूँगा। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। ज़बूर। जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादिर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मुहलक वबा से छुड़ाएगा। यसाया। लेकिन खुदावंद रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। ज़बूर। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। वो जो उस पर भरोसा रखते हैं कदम ब कदम ये जानेंगे कि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तईद मददगार। अपनी निजात के लिए कोशिश करें, ये जिंदगी और मोहब्बत का मुतालबा है, क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए खुदा आपके साथ काम करता है। निजात, जिंदगी, सच्चाई और मोहब्बत को सब पर आला समझा और जाहिर किया गया। पाप, बीमारी और मौत को नेस्त किया गया। तजर्बे ने मुसन्नफ के लिए आमतौर पर मादी निज़ामों की गलत फहमी को साबित किया है कि उनके नज़रियात बाज़ औक़ात नुकसानदेह होते हैं।
और उनके इनकार इनके असबात से बेहतर होते हैं। क्या आप एक आदमी को बुराइयों पर काबू पाने का हुक्म देंगे, उसे यकीन दिलाते हुए कि तमाम बदबख्ती खुदा की तरफ से है, जिसके खिलाफ इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए? क्या आप बीमारों को बताएंगे कि उनकी हालत नाउम्मीद है जब तक कि उसे दवा या आबो हवा से मदद न मिले? क्या मादी ज़राए मोहलक इम्कानात से वाहिद पनाहगाह हैं? क्या हर किस्म के इख्तलाफ को हम-आहंगी, हक और सच के साथ फतह करने की कोई खुदाई इजाज़त नहीं है? जैसे जैसे वक्त गुजरता है, बशर नेकी या बदी की तरफ माइल होते जाते हैं। अगर बशर आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, तो गुज़श्ता नाकामियाँ तब तक दोहराई जाती रहेंगी जब तक कि तमाम तर गलत काम खत्म नहीं हो जाते या ठीक नहीं हो जाते। अगर फिलहाल गलत काम से मुतमिन है, तो हमें इससे नफरत करना सीखना होगा। अगर फिलहाल सुस्ती से मुतमिन है, तो हमें इससे गैर मुतमिन होना होगा। याद रखें कि इंसान जल्द या बदीर, खा दुखों की बदौलत या साइंस की बदौलत, गलती पर आमादा हो जाएंगे कि इसे ज़ीर होना है। इन नागुज़ीर अहकामात को सुने। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। बीमार को शिफा दो। इस मसीहत ने इंसानों को मसीही कोशिशों के लिए मुतहरिक करने के लिए इतने कम इल्हाम का मुतालबा क्यों किया है? क्योंकि इंसानों को यकीन दिलाया जाता है कि ये हुक्म सिर्फ एक खास मुद्दत और पैरोकारों की मखसूस तादाद के लिए था। ये तालीम पुराने नज़रिए की पेशबंदी से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। चंद का इंतखाब बचाया जाए जबकि बाकी मलाउन हैं, और इस तरह इस पर गौर किया जाएगा जब इंसानों के बनाए हुए अकायद की वजह से इंसानों की सुस्ती इलाही साइंस के तकाज़ों से टूट जाती है। मसीही फ़राइज़ की फहरिस्त में सबसे पहला फ़र्ज़ जो उसने अपने पैरोकारों को सिखाया, वो सच्चाई और मोहब्बत की शिफाइया क़ुव्वत है। उसने बेजान रस्मों को कोई अहमियत नहीं दी। ये जिंदा मसीह अमली सच्चाई ही है जो मसीह को उन सब के लिए क़यामत और ज़िंदगी बनाता है जो कामों में उसकी पैरवी करते हैं। आजिज़ी के साथ हमारे मालिक ने अपनी गैर तस्लीम शुदा अज़मत का मजाक उड़ाया। जैसी मलामत उसने उठाई, उसके पैरोकार मसीहत की आखिरी फतह तक बर्दाश्त करेंगे। उसने अब्दी अजर हासिल किए। उसने दुनिया, बदन और सारी गलती पर काबू पाया, यूं उनके अदम को साबित किया। वो गुनाह, बीमारी और मौत से मुकम्मल निजात लाया। हमें मसीह और उसके मसलूब होने की ज़रूरत है। हमें मुश्किलात और खुद इनकारियों के साथ साथ खुशियाँ और कामयाबियाँ हासिल करनी चाहिए जब तक कि सारी गलती नेस्त नहीं हो जाती। तालीम दिया गया अक़ीदा कि जान बदन में इंसानों को मौत से बतौर दोस्त बनने का सबब बनता है, यानी लाफानियत और नेमत में से फानियत से अख़ज़ किया गया रास्ते का पत्थर है। बाइबल मौत को दुश्मन कहती है और यसू उन्हें कबूल करने की बजाय मौत और कब्र पर फतहमंद हुआ। रसूल ने पुकारा, अब ये कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अब इंसान को मुस्तक़बिल की दुनिया की निजात या हिफाजत के लिए तैयारी करनी चाहिए, बल्कि ये कि अब इस निजात का रूह और ज़िंदगी में तजुर्बा करने का वक्त है। अब वक्त है नामनहाद मादी तकलीफ़ों और मादी खुशियों को तर्क करने का, क्योंकि दोनों गैर हकीकी हैं, इसलिए कि दोनों साइंस में नामुमकिन हैं। इस ज़मीनी जादू को ख़त्म करने के लिए बशर को उस सब के हकीकी तसव्वुर और इलाही असूल को समझना चाहिए जो हम-आहंगी के साथ कायनात में वजूद रखता और उस पर हुक्मरानी करता है। इस ख्याल को आहिस्ता आहिस्ता समझा जाता है और शकूक और नाकामियों, इसके अलावा फतूहात के साथ इसके हसूल को मुमकिन बनाने से पेशतर इसके दो हिस्से किए जाते हैं। हम खुद इसका इंतखाब नहीं कर सकते, मगर हमारी निजात के लिए हमें वैसे ही काम करना चाहिए जैसे यसू ने हमें सिखाया है। वो राह जिससे लाफानियत और ज़िंदगी की तालीम पाई जाती है, वो कलीसियाई नहीं बल्कि मसीही, इंसानी नहीं, इलाही,
जिस्मानी नहीं माबादुल तिबियाती, मादी नहीं बल्कि साइंसी तौर पर रूहानी है। इंसानी फ़लसफ़ा, इख़लाक़ियात और तोहम उस काबिल असबात इलाही असूल को बर्दाश्त नहीं करते जिसकी बदौलत बशर गुनाह से फ़रार हो सके। ताहम गुनाह से फ़रार बाइबल का मुतालबा है। रसूल कहता है, डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम करते जाओ, और वो बराह रास्त ये बात शामिल करता है, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। फिलिपियों 2 बाब 12-13 आयात। सच्चाई ने बादशाहत की कुंजी तैयार कर ली है, और इस कुंजी की बदौलत क्रिश्चियन साइंस ने इंसानी फहम का दरवाज़ा खोल लिया है। कोई भी ताला नहीं उठा सकता और ना ही किसी दरवाजे से दाखिल हो सकता है। आम तालीमात मादी हैं, ना कि रूहानी। क्रिश्चियन साइंस सिर्फ वही सिखाती है जो रूहानी और इलाही है, इंसानी नहीं। क्रिश्चियन साइंस बेरब्त और इलाही है। चीज़ों का इंसानी एहसास गलत है क्योंकि ये इंसान है। वो अफराद जो थियोसफी, रूहानियत या हिप्नोटिज्म को अपनाते हैं, उनकी फितरत कुछ दूसरों से बढ़कर हो सकती है जो अपने गलत अकायद से बचते हैं। इसलिए मेरा मुकाबला फर्द से नहीं, बातिल इंसान से है। मैं बनी नौ इंसान से मोहब्बत करता हूँ और मेहनत करता रहूँगा और बर्दाश्त करता रहूँगा। सच्ची रूहानियत के पुरसकून मजबूत धारे, जिनके इजहार सेहत, पाकीज़गी और खुदकार कुर्बानी हैं, उन्हें उस वक्त इंसानी तजर्बे को गहरा करना चाहिए जब तक मादी वजूदियत के अकायद वाज़ह मुसल्लत होते हुए दिखाई नहीं देते, और गुनाह, बीमारी और मौत रूहानी अलूहियत के साइंसी इजहार और खुदा के रूहानी कामिल इंसान को जगह फराहम नहीं करते। रूहानी ज़िंदगी और बरकत ही वाहिद सबूत हैं जिनके वसीला हम हकीकी वजूदियत को पहचान सकते और नाकाबिले बयान अमन को महसूस करते हैं, जो सब जज़ब करने वाली रूहानी मोहब्बत से निकलता है। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता जानते हैं और इंसान की रूहानी हस्ती को पहचानते हैं, हम खुदा की तख्लीक को समझें और देखेंगे। सारा जलाल ज़मीन और आसमान और इंसान के लिए। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मुजम्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।